Hi everyone, myself Keshav Kumar Vaishnav, the Extension Lecturer, Government College for Women, Faridabad. So in our last video, we discussed about the physical features of Asia. So like that, we will discuss about the physical features. In the last video, we discussed about the physical features of South America. So that, we will discuss about the physical features of Asia in this video. And this topic is part of Geography of Tourism subject in BTTM first semester, according to the syllabus of AMD University Rohtak. So we will discuss about the Asia in this video. So basic facts about the Asia is that Asia covers 44.58 million square kilometer area, which is the approximately 30% of total land mass area. मतलब हमारी जो पृथ्वी का जो मुख्य भूभाग है उसका 30% एरिया ये कवर करता है. And the population is approximately 60%. If we talk about only Asia, so approximately 60% of the total population of world is reside here, and the rest of 40% in others continents. 6 other continents, 6 और कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें है. बाकी इस हिसाब से हम देखिए तो एशिया मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में. बेसिकली हम बाउंड्रीज की बात करें तो एशिया की जो बाउंड्रीज हैं वो ईस्ट में हम बात करें तो जो यूरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट है उसको डिवाइड या उससे लगते हुए. वेस्ट में हम बात करें तो यूराल माउंटेन सिस्टम है विच वी कैन नॉट से एग्जैक्टली बट वी कैन से इट डिवाइड यूरोप एंड एशिया. Some geographers have some different views about the boundaries which shared by the Europe, by the Asia, and that is a different point. And in other parts, Asia share boundary with the Arctic, Pacific, and Indian Ocean. So Asia is the largest and the populous continent of world. Asia is divided in 5 major regions like we have discussed in other videos. Each and every continent for the study purpose is divided in some major regions like the mountain system, plateaus, plains, river basin and coastline. So like that Asia is divided in 5 physical regions, and these are mountain system, plateaus, plains, steppes and desert, freshwater environment and salt water environment. So these are the main 5 physical regions, or we can say Asia is divided in these 5 major regions. So we will study about these regions one by one. So सबसे पहले mountain system, we will discuss about the mountain system. So if we talk about the Asia, so Asia has 3 main mountain systems: Himalayan mountain system, Tian Shan mountain system and Ural mountain system. These are the major mountain system of Asia. And if we talk about the Himalayan mountain system, so Himalayan mountain system approximately covers 2500 kilometer area, और वी कैन से ये लगभग 2500 किलोमीटर स्ट्रेच को कवर करता है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम लाइज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया में है इसका जो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इंडिया का वो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है. हिमालयन माउंटेन सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है ग्रेटर हिमालयस, दूसरा मिडल हिमालयस और तीसरा लोअर हिमालयस. ग्रेटर हिमालयस की हम बात करें तो जो एवरेज एलिवेशन है ग्रेटर हिमालयस का वो है 6096 मीटर अप्रॉक्सीमेटली. जो हाइट है
इस एरिया की हिमालयज के, वो है अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर। मोस्ट ऑफ द Himalayan most of the part of this region is covered in snow, and there is no vegetation, there is no flora and fauna because of a few reasons. उनमें से सबसे पहला है कि स्नो कवर होता है। स्नो कवर होने की वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति या वेजिटेशन नहीं होती, एंड ऑक्सीजन लेवल, वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। सो बहुत कम एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स वी कैन से सर्वाइव कर पाते हैं, वो भी इसके जो सबसे नीचे पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालयज के जो सबसे नीचे पार्ट हैं, उनमें ही देख सकते हैं, बहुत कम स्पीसीज हैं। दूसरा है मिडल हिमालयज एंड लोअर हिमालयज। सो मिडल हिमालयज और लोअर हिमालयज में आता है दून वैली, शिवालिक, बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस हैं, लाइक द मसूरी, मनाली, नैनीताल, ये आते हैं मिडल एंड लोअर हिमालयज में। तो स्टडी के तौर पे हिमालयज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालयज, मिडल हिमालयज एंड लोअर हिमालयज। दूसरा जो मेजर माउंटेन सिस्टम है एशिया का, वो है द तिएन शान माउंटेन सिस्टम, और ये अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर का एरिया, या हम कह सकते हैं कि 2400 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये फैला हुआ है। ये किर्गिस्तान एंड चाइना की बॉर्डर बनाता है, या हम कह सकते हैं किर्गिस्तान को चाइना से सेपरेट करता है। तिएन शान का जो चाइनीज़ में मतलब होता है, या चाइनीज़ में जो अर्थ होता है, वो होता है सेलेशियल माउंटेन। सेलेशियल माउंटेन का मतलब है आकाशीय माउंटेन, मीन्स इस माउंटेन की इतनी हाइट है कि इसको आकाश की हाइट के से कंपेयर किया गया है। दैट्स वाई पीपल कॉल इन चाइना दैट इज अ सेलेशियल माउंटेन और तिएन शान माउंटेन। इस तिएन शान माउंटेन सिस्टम की, या इस पर्वत श्रृंखला की 2 हाईएस्ट पीक हैं। पहली है विक्टोरिया पीक, जो अप्रोक्सीमेटली 7439 मीटर की हाइट पे है, एंड दूसरी है खान तेंगरी पीक, जो लगभग 7000 मीटर की हाइट पे है। तिएन शान ऑल्सो हैज़ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब लगभग 4000 स्क्वायर माइल का एरिया वो पूर्णतः ग्लेशियर्स हैं, और ये एशिया के लिए एक बहुत बड़े रिवर सिस्टम का या फिर नदियों के ओरिजिन का कारण बनता है, क्योंकि इसका जो ग्लेशियर है वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 4000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। तीसरा माउंटेन सिस्टम है एशिया का यूराल माउंटेन सिस्टम, जो ये भी लगभग 2500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसको कवर करता है। ये एक तरीके से नॉर्थ साउथ लाइन है, जो रसिया से लेके कजाकिस्तान की तरफ, या रसिया से लेके कजाकिस्तान तक है। यूराल माउंटेन्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, एंड अब इसकी एज की बात करें तो लगभग 250 से 300 मिलियन ईयर्स का टाइम इसने अब तक कवर किया है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी जो एज है वो लगभग 250 से 300 मिलियन ईयर्स की है। और इतने लंबे पीरियड में इरोजन की वजह से, एंड इरोजन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, तो इन सब की वजह से धीरे धीरे कई लाख साल के टाइम के बाद में इसकी जो एवरेज हाइट है वो काफ़ी घट गई है। और इसका जो एवरेज एलिवेशन की हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 3000 से 4000 फीट है, सो जो कि बहुत ज़्यादा किसी भी माउंटेन के लिए हाइट नहीं होती है। प्लेट्यूज़, अगर हम एशिया की बात करें तो 3 प्लेट्यूज है मेनली। पहला ईरानियन प्लेटू, दूसरा डेक्कन प्लेटू एंड तीसरा तिब्बतन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू ये इंडिया का ही पार्ट है,
सबसे पहले ईरानियन प्लेटू की हम बात करते हैं। तो ईरानियन प्लेटू कवर्स मोर देन 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड ये जो ईरानियन प्लेटू है ये ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो पार्ट है उसको कवर करता है। एंड प्लेटू इज़ नॉट यूनिफॉर्मली फ्लैट बट कंटेन्स सम हाई माउंटेन्स एंड लो रिवर बेसिन्स। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज दामावन एंड height is 5600 meter. Plateau also has two large deserts. पहला है दस्त ए कबीर एंड दूसरा है दस्त ए लूट। सीधी सी बात यह है कि जो ईरानियन प्लेटू है, जो ईरान का ये पार्ट है, ईरान के आसपास का जो एरिया है उस ऊंचे भूभाग को कवर करता है और इसको ईरानियन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 मेजर कंट्रीज आते हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। दूसरा है डेक्कन प्लेटू जो कि इंडिया का पार्ट है एंड इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर से लेके 2000 इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर है, अप्रोक्सीमेटली 2000 फीट। इट्स बॉर्डर्ड बाय द 3 माउंटेन रेंजेस। फर्स्ट इज द सतपुड़ा रेंजेस जो कि इंडिया के मध्य भाग में है, लगभग मध्य भाग में हम कह सकते हैं सतपुड़ा रेंजेस है। एंड ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दो अलग माउंटेन रेंजेस हैं। ये जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू वो नॉर्थ में सतपुड़ा एंड ईस्ट और वेस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। और जो मेन बात है इसकी वो है कि ये मिनरल रिच एरिया है। मेजर जो रिवर है इस प्लेटू में वो है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। तिब्बतन प्लेटू जिसको दुनिया की छत कहा जाता है, तिब्बतन प्लेटू को रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे और बहुत एरिया कवर करता है। Tibetan Plateau is extremely important to the world's water cycle because of its tremendous number of glaciers. These glaciers contain largest volume of ice outside the poles. अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर्स हैं वो तिब्बतन प्लेटू में हैं, जो कि दुनिया का जो रिवर सिस्टम है या फिर जो फ्रेश वाटर है उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। ये थे माउंटेन सिस्टम और थोड़े से हमने फैक्ट्स जो पढ़े थे एशिया के बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।